8 मार्च 2026 आगरा। ऑयस का जापान प्रतिनिधि मंडल के साथ विकास पर सार्थक मंथन। आगरा के समग्र, सतत एवं सांस्कृतिक विकास को नई दिशा प्रदान करने के उद्देश्य से ऑयस का इंटरनेशनल जापान के प्रतिनिधि मंडल के साथ एक महत्वपूर्ण विचार विमर्श बैठक का आयोजन 18 मार्च 2026 को अपराह्न 3 बजे दारमाना ग्रांड, प्रतापपुरा, आगरा में किया गया। बैठक का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पक्ष भी सामने आया। डॉक्टर गिरीश गुप्ता ने बताया कि उनके पिता वर्ष 1962 में जापान गए थे, जहां वरिष्ठ नागरिकों की बढ़ती आवश्यकताओं को देखते हुए रिस्पेक्ट एज इंटरनेशनल की स्थापना का विचार विकसित हुआ। स्वयं डॉक्टर गिरीश गुप्ता वर्ष 1975 में जापान गए और वर्ष 2025 में उन्हें ऑयस का इंटरनेशनल द्वारा दीर्घकालिक सहयोग के लिए सम्मानित किया गया। बैठक में आगरा की ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित रखते हुए आधुनिक तकनीकी, पर्यावरणीय एवं पर्यटन विकास के समन्वित दृष्टिकोण पर विस्तार से चर्चा की गई। I can understand you are so humble and you will never take credit to you what you are doing. That's why you are so silently upset. And when I was attending this conference this time, the President Suzuki Nakano, in her speech, she was telling that we should, this earth is like our mother, and we should respect and care, and we should not destroy it with the weapons. She was very inspiring, her speech, and she said when the first astronaut gone out of the space, and when he came out from his capsule and see outside, they say that the Earth is, the planet Earth is like a bluish and very, very fragile like toy. And she was telling on her speech that the astronaut felt that it is such a fragile planet, or it is such a beautiful. If I touch, it may not break. So this is the condition when you go out of space and see this Earth, this planet. She was always telling all the countries that we should preserve it, we should not destroy with this electronic or this weapons, and we should take care of this Earth just like a mother. So this was very, very inspiring speech. I want to thank her for this, and you please convey my wishes to her also, that we all appreciate, all the delegates, those who are there, they were all appreciated. And before I also please tell something that how the OSCA is doing and what education program you are doing in India. इस अवसर पर कर्नल मनोहर नायडू द्वारा 2 महत्वपूर्ण एवं दूरदर्शी प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए, जिन्हें जापानी प्रतिनिधि मंडल ने विशेष रुचि के साथ सराहा। पहला प्रस्ताव आगरा में प्लानेटेरियम की स्थापना से संबंधित था। इस पर ऑयस का इंटरनेशनल जापान के प्रबंध निदेशक श्री मोरिता अकीरा ने सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए तकनीकी सहयोग प्रदान करने की संभावना व्यक्त की। ये परियोजना शिक्षा एवं विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी सिद्ध होने के साथ साथ पर्यटन को भी नई दिशा देगी। दूसरा प्रस्ताव जापानी उद्यान, जापानीज गार्डन की स्थापना का था, जो ऑयस्का की कृषि एवं पर्यावरणीय गतिविधियों के अनुरूप है। ये उद्यान आगरा के पारिस्थितिक संतुलन को सुदृढ़ करने के साथ साथ शहर की सौंदर्य वृद्धि और अंतर्राष्ट्रीय आकर्षण को भी बढ़ावा देगा। जापानी प्रतिनिधि मंडल में मोरिता अकीरा, नाकामुरा, मिश यूरी एवं ऋतु प्रसाद शामिल थे। Such a welcome, such a warm message for us. In fact, we haven't expected such a warm and a big welcome for the delegates. Thank you so much. Yes, we have heard about your plan to set a new planetarium here and also opening here.
Well, I didn't know about precisely for the gardening and also for the planetarium, but as Dr. Gupta have introduced that we have astronomy in our sister company in Japan. So he has visited our astronomy there and have looked at the planetarium there. Then he has inspired by our planetarium there. So for the budgetary constraints of the WISCA Japan, we cannot have a helping hand for the to provide the budget to set up. But I think we have some contribution to give you some kind of techniques and also for the advice from our astronomy in Japan. And also for the gardening is our foundation is agriculture. So we have also associated with the gardening there. So yes, we can introduce some related persons who is very active in ऋतु प्रसाद ने बताया कि आगरा के लगभग 100 विद्यालयों में चिल्ड्रन फॉरेस्ट प्रोग्राम संचालित किए जा रहे हैं। संस्था द्वारा दिए गए उपहारों से जापानी प्रतिनिधि मंडल अत्यंत भाव विभोर हुआ। बैठक के दौरान सांस्कृतिक समन्वय का सुंदर उदाहरण भी देखने को मिला, जब देवाशीष गांगुली एवं उनकी टीम द्वारा प्रस्तुत ब्रज गीत ने सभी उपस्थित अतिथियों का मन मोह लिया। सप्त सुरन की सुरलहरी में, सप्त सुरन की सुरलहरी में, भक्ति भाव की नदी गहरी में, भक्ति भाव की नदी गहरी में, संगीतेश अंतर के पट बोले, संगीतेश अंतर के पट बोले, कान्हा की बंसी जब सरगम बोले, कान्हा की बंसी जब सरगम बोले, सरगम बोले मन डोले, सरगम बोले मन डोले, सरगम बोले मन डोले, सरगम बोले मन डोले। इस अवसर पर डॉक्टर वीडी अग्रवाल, श्री राजेश गोयल, कर्नल मनोहर नायडू, कर्नल राज मलिवाल, कमांडर राकेश गुप्ता, श्री राजेंद्र गुप्ता, दीपक प्रहलाद अग्रवाल, मंजू गुप्ता, कृष्णा दत्ताचार्य, डॉक्टर भट्टाचार्य, वत्सला प्रभाकर, आर के दीक्षित, राजकुमार चतुर्वेदी, एम नैयर, श्री यदुराज गोयल, नितिन गुप्ता, डॉक्टर रामबाबू हरित सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। बैठक में भविष्य में भारत जापान सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा प्रस्तावित परियोजनाओं को धरातल पर उतारने हेतु ठोस कदम उठाने पर सहमति व्यक्त की गई। बाद में है बांस चारकोल के प्रभाव कृषि में इसका उपयोग। ये फिर तो मैं जो समझ पाया, बांस से चारकोल बनाएं और उसमें कृषि में उपयोग करें, इससे शायद प्रोडक्शन कई गुना बढ़ता होगा और इससे जो है लाभ होता होगा, शायद जो मैं समझ पाया।
की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, डेलीगेशन का भी और यहाँ उपस्थित सभी हमारे सम्मानित सदस्यों का। और कुछ जानकारी मिली जापान से, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं हम इनके डेलीगेशन के और ग्रीस जी के, क्योंकि ग्रीस भाई साहब भी गए थे जापान और कुछ अनुभव लाए, तो उसी का ये आज परिणाम है कि आज जो डेलीगेशन हमारे बीच आया और अपने विचारों का आदान प्रदान हुआ। तो धन्यवाद कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।